value will be plus 3. So what is the derivative of sin x? So sin x का derivative is cos of x. So option A here is the right choice. So in the next question, the examiner is asking you to integrate the value of 3x square dx. So 3 is constant, so x square dx. Now I'll be integrating it up. So एक पावर इंक्रीज हो जाएगी और न्यू पावर से मैं डिवाइड करूंगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन विल बी एडेड अप, so this will be x cube plus c. So right option here is option A. So next question is again related to logs. So we know that कि अगर आपके पास दो logs की terms add up हो रही हों तो they get multiplied. So this will become log 5x is equals to log 20. So I'll take anti-log on both sides and this log will get cancelled. So I'll be left with 5x is equals to 20 and x is equals to 4. So the next question is of series. So the examiner is asking कि 1 plus 3 plus 5 plus 99 है. So you have to sum up this series. So अगर मैं सीरीज की तरफ देखूं तो अरिथमेटिक सीरीज, क्योंकि हर टर्म के अंदर जो है वो 2 का जो है ना इंक्रीमेंट हो रहा है. सो डी हेयर इज 2, दैट इज 3 माइनस 1 या 5 माइनस 3, दैट इज 2. सो द फर्स्ट टर्म हेयर इज a1, दैट इज 1. एंड टोटल नंबर ऑफ टर्म देखो 1 से लेके 100 तक 100 नंबर्स हैं, जिसमें से 50 numbers are odd and 50 numbers are even. So यहाँ पे ये odd series चल रही है 1 3 5 7 9 and so on. So n here will be 50. So arithmetic series की summation का formula मैं use कर लूँगा, that is n by 2 2a1 plus n minus 1 into d. So 50 plug in करूँगा, 2 आ जाएगा 2a1. So a1's value is 1 plus 50 minus 1, that is 49 and d's value is 2. So this will be 25, right? And this will be 100. जब आप इसको sum up करोगे, so this will become 2500. ठीक है जी. So find the value of sin 45 degree plus cos of 45 degree. नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपको कह रहा है. सो लेक्चर्स में मैंने आपको इसका टेबल जो है वो बनाने का या मेथड जो है वो आपको बताया हुआ, इसके साथ साथ बताया हुआ कि प्रीवियस पेपर्स में ऐसा क्वेश्चन भी आता रहा है कि साइन एक्स और कॉस एक्स की वैल्यू इक्विवेलेंट है, तो आप बता दो कि एक्स कितने डिग्रीज है. सो साइन 45 कॉस 45 दोनों की जो वैल्यू होती है, ठीक है. सो साइन 45 एंड कॉस 45 बोथ हैव अ वैल्यू ऑफ 1/√2. So I'll plug in 1/√2 here, plus I'll be plugging in 1/√2 here as well. So this will become 2 times √2. So आंसर जो है मेरे पास रैशनलाइज होके पड़ा हुआ है. सो √2 से मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड इसको कर लूँगा. So this will become 2/√2 and in the denominator I'll be having √2 into √2 का square. So √2 का square is 2. So 2 will get cancelled with 2. So I'll be left with √2. So now moving on to question number 7. Question number 7 के अंदर एग्जामिनर ने आपको एक टर्म दी हुई है और उसका सोल्यूशन पूछ रहा है. सो द इक्वेशन इज 2 की पावर x इज इक्वल टू 32. सो टू कंपेयर द पावर्स, मेरे पास जो बेसिस हैं दे शुड बी सेम. सो 2 की पावर 5 हो जाएगा, दिस विल बिकम 2 की पावर 5. 2 विल गेट कैंसिल विद 2 एंड आई विल बी लेफ्ट विद x इज इक्वल टू 5. सो x इक्वल टू 5 इज द राइट आंसर हियर. So the examiner is asking about the determinant of this matrix. So determinant लेने के लिए मैं क्या करूँगा, 1 3 sorry that is 1. So this will be 1 3 2 and 4. So we all know that determinant लेने के लिए हम क्या करते हैं, diagonals को आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं और उनका आपस में आप जो है ना डिफरेंस ले लेते हो. So 1 into 4 minus 3 into 2. So this will become 4 minus 6 and the answer will be minus 2. So the right choice here is minus 2. So evaluate 5 factorial. So 5 factorial की वैल्यू जो है वो आपसे पूछी जा रही है. So 5 factorial की वैल्यू आपके पास आएगी. So 5 into 4 into 3 into 2 into 1. So 5 4s are 20, 23s are 60, 62s are 120. So the answer here will be 120. So the right choice here is option A, that is 120. So next question है बेसिक मैथमेटिक्स से, अलजेब्रा से रिलेट करता है. x plus 1 by x की value is given as 3 and you need to find out the value of x square plus 1 by x square. So what I will do here is I'll be taking square on both sides. So on the left side I'll have a square plus b square plus 2ab is equals to 3 का square is 9. So x के साथ cancel हो जाएगा. So this will be x square plus 1 by x square is equals to 9 minus 2. So 9 minus 2 is 7. So x square plus 1 by x square is equals to 7 आ जाएगा हमारे पास. So 7 will be the answer.
सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to 2। सो आपके पास क्लोज इंटीग्रल है एक, ठीक है। सो मैं इसको इंटीग्रेट कर लूँगा 0 से 2 एक्स डी एक्स है। सो एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटीग्रेशन के बाद आ जाएगा मेरे पास, क्योंकि पावर इंक्रीज होगी और नई पावर से आप डिवाइड करोगे। सो व्हाट यू विल डू इज यू विल बी प्लगिंग इन द अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। So I'll be having 1 by 2 and 4 here. So I'll be left with 2. So remember कि this test is a combination of your आपका जो FSC की चीज़ें हैं प्लस आपका जो बेसिक मैथमेटिक्स की चीज़ें हैं। सो अभी तक जो क्वेश्चन आए हैं आपके पास उसमें मोर और लेस FSC से रिलेटेड कंटेंट है या मैट्रिक्स रिलेटेड कंटेंट है। सो आगे अभी जब आप इस लेक्चर में चलोगे तो यू विल ऑल्सो बी हैविंग द क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स के क्वेश्चन एज वेल। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू e की पावर x का डेरिवेटिव पूछा हुआ है। वी नो दैट e की पावर x का आप इंटीग्रल लो, स्टिल इट इज e की पावर x। अगर आप इसका डेरिवेटिव लो तो स्टिल इट इज e की पावर x। एक बात याद रखना, अगर ये e की पावर mx देगा आपको एग्जामिनर क्वेश्चन में, सो e की पावर mx तो एज इट इज लिखा जाएगा, बट ये जो पावर है इसके डेरिवेटिव से आप साथ मल्टीप्लाई कराओगे। सो m इज कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव इज 1, सो m साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस विल बिकम m e की पावर mx। और अगर आप इसको इंटीग्रेट करवाओगे सो e की पावर mx विल बी रिटन एज इट इज, और जो m है आप उससे डिवाइड कराओगे। सो दिस इज द केस ऑफ इंटीग्रेशन फॉर e की पावर x, e की पावर mx, एंड दिस इज द केस ऑफ डेरिवेटिव फॉर द e की पावर m ऑफ x। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग एन एस फ्रॉम अ स्टैंडर्ड डेक ऑफ कार्ड्स। सो टोटल कार्ड जो होते हैं डेक ऑफ कार्ड्स में दे आर 52 कार्ड्स, उसमें से 4 जो कार्ड्स होते हैं दे आर एसेस, ठीक है। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग एन एस विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग एन एस विल बी 4/52। सो आप इसको कैंसिल अप कर दो। वैसे तो उसने आंसर को जो है ना वो दोनों फॉर्म्स में ही लिखा हुआ है। सो 4 1s एंड 4 13s इज 52। सो 1/13 भी लिखा जा सकता है इसका, और 4/52 भी लिखा जा सकता है आंसर। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ cos 30। अगेन मैंने अपने लास्ट लेक्चर्स के अंदर आपको ये टेबल को जो है ना बनाने का तरीका, आपको मैंने मेथड जो है वो आपको बताया हुआ है कि आप कैसे विदाउट कैलकुलेटर अपनी जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हैं उनको आप याद रख सकते हो। एनी हाउ जो sin 60 की वैल्यू है वो आपके पास cos 30 की वैल्यू होती है। सो आप बेशक cos की अगर वैल्यूज़ को या sin की वैल्यूज़ को सिर्फ याद रख लोगे तो आप पूरा टेबल जो है ना जो है वो रेप्लिकेट कर सकते हैं इन द एग्जाम। जिस भी वैल्यू की आपको जरूरत पड़ेगी वो आप कर सकते हो। सो sin 60 की जो वैल्यू होती है दैट इज √3/2, वही आपके पास cos 30 की वैल्यू होती है। सो विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज 0.866। एनीवेज यहाँ पे फ्रैक्शन की फॉर्म ही आंसर है, सो √3/2 विल बी द आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन फ्रॉम द बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है। 2x को मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा, 3x में से 2x माइनस हो जाएगा, आई विल बी लेफ्ट विद 5 and plus 4, so x will be equals to 9. So the right option is option C. Moving on, so next question is question number 16. Question number 16 के अंदर examiner is asking you to tell the mean of this data set. So mean या average एक ही चीज होती है students. So remember to calculate the mean of a data set or average of a data set. You only need to sum up the terms given up, ठीक है, और आप उनको उन terms को divide कर लोगे जितनी भी number of terms आपके पास given है। So what I will do here is कि I'll be adding up 5 plus 7 plus 10 plus 12 plus 15, इसको मैं ऐड अप करूंगा, डिवाइड बाय 5 करूंगा, 5 टर्म्स हैं, और जब मैं इसका सम अप करूंगा तो दिस विल बिकम 49/5। सो 49/5 अप्रोक्सीमेटली जो है वो आपके पास जो है ना वो 10 5 10 या 50 होता है। सो अप्रोक्सीमेटली जो है वो आपके पास 10 आएगा। So moving on to question number 17, two sides of a right angle triangle are 3 and 4, find the hypotenuse. So hypotenuse निकालने के लिए आप क्या करते हैं, Pythagoras theorem का आप यूज कर लोगे। hypotenuse का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सो अज्यूमिंग दीज आर बेस एंड परपेंडिकुलर, सो दिस विल बी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू hypotenuse का स्क्वायर। राइट साइड पे आपके पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर इज आपके पास 9 एंड 4 का स्क्वायर इज 16, 9 plus 16 विल बी 25। सो आई विल बी टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड। सो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5 आ जाएगी। सो फाइंड द डेरिवेटिव। सो आपके पास एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, उसका डेरिवेटिव आपसे पूछ रहा है। सो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विल बी 2x, 5x का डेरिवेटिव विल बी 5 एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव विल बी 0। सो द राइट आंसर हियर इज 2x plus 5। सो वेरी इजी क्वेश्चन, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। एग्जामिनर ने आपसे एक इजी क्वेश्चन पूछा है। सो इट इज अ मिक्सचर ऑफ मीडियोकर टू डिफिकल्ट टू बेसिक क्वेश्चन। सो अब कुछ क्वेश्चन मैंने इसके अंदर बीच में ऐड किए हैं
विच आर रिलेटेड टू द क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स का सेक्शन जो है आपके पास। सो एग्जामिनर आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है, इफ ए एंड बी कैन कंप्लीट अ टास्क इन 10 days व्हेन वर्किंग टुगेदर, ए अलोन कैन कंप्लीट द सेम टास्क इन 15 days, हाउ लॉन्ग विल इट विल टेक बी टू कंप्लीट द टास्क अलोन। सो ए और बी जो है मिलके जो काम कर रहे हैं, दे आर कंप्लीटिंग दैट टास्क इन 10 days। सो रेट क्या हो जाएगा ऑफ ए डूइंग वर्क, दैट विल बी 1/a, ठीक है, 1 टाइम हो जाएगा। तो ए और बी जो मिला के 10 days ले रहे हैं, सो अगर मैं रेट की बात करूँ तो 1/a हो जाएगा, और बी का जो रेट ऑफ डूइंग वर्क है दैट इज 1/b, ठीक है। सो टाइम से जब भी कोई क्वांटिटी डिवाइड होती है, सो इट बिकम्स रेट। सो 1/a प्लस 1/b इज 1/10 हेयर। ओके, सो नाउ ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 15 days। सो ए का जो रेट ऑफ डूइंग वर्क है दैट इज 1/a इज इक्वल्स टू 1/15, ठीक है। सो रेट ऑफ ए और डूइंग वर्क इज 1/15। सो आई विल प्लग इन द वैल्यू ऑफ द रेट ऑफ डूइंग वर्क ऑफ ए हेयर। सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं एलसीएम ले लेता हूँ इसको दूसरी तरफ लेके जाने के बाद। सो 1/10 माइनस 1/15। सो जब मैं यहाँ पे एलसीएम लूंगा, so I'll be left with 1/b is equals to 15 minus 10 divided by 10 into 15। so 15 में से जब 10 चला जाएगा आपके पास, you'll be left with 5, नीचे आपके पास रह जाएगा 10 into 15। so 5 1s are 5 3s are, so here you'll be left with 1/b is equals to 1/30। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, b के नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे। सो b अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 30 days। सो टाइम को डिवाइड करोगे तो आपके पास रेट ऑफ डूइंग वर्क आ जाएगा। सो वापस आप उसको रेसिप्रोकल लोगे तो आपके पास डेज आ जाएंगे। सो बी विल कंप्लीट अलोन विल अलोन कंप्लीट द वर्क इन 30 days। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर ने आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, और मैट्रिक्स देने के बाद एग्जामिनर जो है वो आपसे उसका इन्वर्स पूछ रहा है। सो इन्वर्स निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, सो इन्वर्स निकालने के लिए मेरे पास एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स होता है, ठीक है। सो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स को मैं डिवाइड करूंगा विद द आपका डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। सो मैंने थोड़ी सी स्पेस क्लियर कर ली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिटर्मिनेंट निकालता हूँ इस मैट्रिक्स का। जब मैं डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे डायगोनल। सो 4 1s are 4 minus 3 2s are 6, so this will be -2, so determinant will be -2। एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है, एडजॉइंट निकालने के लिए आप क्या करोगे कि एडजॉइंट निकालने के लिए आप जो है इस डायगोनल की पोजीशन को चेंज करोगे, इस डायगोनल की पोजीशन के इस डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं उनके साइंस को आप चेंज करोगे। सो दिस विल बिकम 4 1 and -2 and -3। so adjoint divided by determinant of a, so adjoint divided by determinant of a आ जाएगा। so adjoint will be 4 -3 -2 1 divided by -2। so when every term will get divided by -2, so 4 को जब आप -2 से डिवाइड करोगे तो this will become -2, -2 को जब आप -2 से डिवाइड करोगे this will become +1, and similarly जब आप -3 को डिवाइड करोगे, जब आप इस -3 को भी इस एडजॉइंट -2 सॉरी डिटर्मिनेंट -2 से डिवाइड करोगे तो दिस विल बिकम +1.5, और जब आप 1 को -2 से डिवाइड करोगे तो 0.5 आएगा, और साथ में माइनस आएगा, -0.5 आ जाएगा। सो द राइट ऑप्शन फॉर द इनवर्स हेयर इज ऑप्शन ए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर ने आपसे पूछा हुआ है कि लिमिट साइन ऑफ x ऑफ x। सो लिमिट साइन x ऑफ x की जो वैल्यू है, सो आई एम सॉल्विंग इट इन ग्रीन तो आपको ताकि कंफ्यूजन हो। सो लिमिट साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय x व्हेन x अप्रोचेस टू 0 क्या होगी। सो बेसिकली दिस इज सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम क्या कहता है कि जब लिमिट x अप्रोच 0 कर रही हो और साइन अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा हो रहा हो, सो दिस बिकम्स 1। सो दिस कैन ऑल्सो बी आस्क्ड इन एग्जाम्स लाइक दिस, कि ये क्वेश्चन जो है ना सम टाइम जो क्योंकि एनटीएस कंडक्ट करता है मर्चेंट नेवी का टेस्ट, तो मैंने बताया है कि डिफिकल्टी लेवल मीडियोकर होता है। सो सम टाइम दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन कम लाइक दिस, कि यहाँ पे कोई वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई हो रही है और नीचे एक्स है। सो इन दैट केस आप क्या करोगे कि आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे और 7 से आप डिवाइड करोगे, यू विल टेक दिस 7 इन द डिनोमिनेटर, ये 7 यहीं पे पड़ा रहेगा। सो अब हमारे पास ये कंडीशन पूरी हो रही है कि साइन अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा पड़ा हुआ है। सो दिस होल टर्म विल बिकम 1। सो व्हेन दिस विल बिकम 1, 7 1s विल बी 7। सो कहता है फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 5। वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। एज एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। सो पाई आर स्क्वायर है और पाई आ जाएगा, रेडियस हियर इज 5, सो 5 का स्क्वायर जस्ट इज 25 पाई आ जाएगा आपके पास जो एरिया ऑफ अ सर्कल है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
मॉड ऑफ डाटा सेट पूछा हुआ है, लास्ट ईयर के पेपर्स में भी मॉड पूछा जाता रहा है. सो स्टूडेंट्स रिमेंबर, सो मॉड in a data set is the most repeated value. So most repeated value in a data set is your mod. So most repeated value is your mod. So here the most repeated value will be value is 4, क्योंकि 4 जो है वो 3 times occur कर रहा है. So here my mod will be 4. So next question probability का है. A box contains 5 red balls, 3 blue balls and 2 green balls. If one ball is picked at random, what is the probability that it is either red or green? So either red or green जब आप निकालोगे, so you will have to use the formula probability of R union B, which will be the probability of R plus probability of G minus the probability of R intersection G. So here the probability of R will be, so अगर आप R की probability निकालोगे तो probability of R कैसे आएगी कि टोटल कितने आपके पास बॉल्स हैं और रेड आपके पास कितनी बॉल्स हैं. तो रेड बॉल्स आर 5 एंड टोटल बॉल्स आर 10. ग्रीन आपके पास कितनी बॉल्स हैं 2 एंड टोटल बॉल्स आर 10. और जो अब आप इसका इंटरसेक्शन लोगे, ठीक है, सो देयर इज नथिंग इन कॉमन बिटवीन देम, ठीक है, डिसजॉइंट हैं ये दोनों सेट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ रेड बॉल एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ ग्रीन बॉल, सो दिस होल टर्म विल बिकम 0. So you will be left with 7 by 10. So the right option here is option D, which is 7 by 10. So ये 25 क्वेश्चन का एक सेट मैंने आपके लिए सॉल्व किया है, जिसका डिफिकल्टी लेवल मोर और लेस वैसा ही रखा है जैसा आपका मर्चेंट नेवी के मैथमेटिक्स का डिफिकल्टी लेवल होता है. थोड़ा सा आप स्लोप्स को देख के जाइएगा, आप जो है इंशाल्लाह पार्शियल फ्रैक्शंस को भी देखिएगा, कम्प्लेक्स नंबर्स को भी थोड़ा सा आपने देखना है, और ट्रिग्नोमेट्री की भी इसी तरीके की बेसिक चीज़ें ही आपके पास होंगी, और इंटीग्रल डेरिवेटिव से भी आपके पास बेसिक चीज़ें होंगी. इसके साथ साथ आपने वेक्टर्स को भी देखना है. सो इंशाल्लाह आई विल बी ब्रिंगिंग अप एन अदर सेट ऑफ 25 अदर एमसीक्यूज, जिसके अंदर वेक्टर्स और इनसे रिलेटेड चीज़ें भी इंशाल्लाह जो है वो मैं ऐड करूंगा या सॉल्व करवाऊंगा, ताकि आपको डिफिकल्टी लेवल ऑफ द टेस्ट का जो है इंशाल्लाह आप उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड हो जाओ. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कैन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. अल्लाह हाफिज़. Like, comment, and subscribe.